Before starting our press conference, I'd like to introduce my team. Myself, Likha Tej, President COSAP, and my right side is Mr. Gonya Riba, Secretary General COSAP, and my left is Madam Lina Tagu, President Women Wings of the COSAP. So again, thank you very much, the media friends, for sparing your valuable time to us and giving us a space through which we'd like to share our joy and happiness at what we have achieved. As you all know that our Honorable Chief Minister has announced to grant the dearness allowances and HRA, that is house rent allowances, and non-practices allowances, that is NPA for the doctors, as per our demands, and he responds very promptly, which is a very happy and joyful moment for all the employed of Arunachal Pradesh. So before going into details, just I would like to read out the exact, just spell out the exact, the basically and what is that we are covering under the HRA and the DA. That Arunachal government has announced to grant increase 4% dearness allowances for regular state government employees and dearness reliefs for pensioners with effect from 1st July 2022, and the house rent allowances HRA and the non-practicing allowances, as I said, that is NPA for the doctors, as per the central, 7 Central Pay Commission's recommendations, revised pay rules 2016. So basically, dearness allowance is the cost living adjustment allowances for the employees which the government pays to its employees as well as dearness relief to the pensioners of the same. The central government has enhanced the DA and the DR, that is dearness allowance and dearness reliefs, twice annually as per the All India Consumers Index number, that is AICPIN. So DA and DR becomes a basic component of the salary and the pensions for the every regular employees, as you know that. And then now coming to the this again the number 2, as per the 7 Central Pay Commission's recommendations, Indian cities, are classified according to the populations for the purpose of house rent allowances, that is HRA. 10 class cities above 50 lakhs and populations and 27% of the basic salary. Y class cities 5 to 50 lakhs populations, 18% of the basic salary, and Z class cities or towns below 5 lakh and populations, that is 9% of the basic salary. That means our Itanagari is covered under the this one Y class, no Z class, Z class cities and towns. And then this all the cities, towns in Arunachal Pradesh come under Z class town or city. So the state government's employees working within the state will entitle HRA at the rate of 9% of the basic salary. Now coming to the non-practice allowances. Non-practice allowances, that is called NPA in short, is given to all the doctors, that is medical officers and veterinary officers of the state governments. Basically this is for the doctors, as we have written here. The Confederation Service Association of Arunachal Pradesh, that is COSAP, on behalf of entire regular state government employees, extend our heartfelt gratitude and acknowledge the state governments led by Sri Pema Khanduji, Honorable Chief Minister, and Sri Chona Menji, Honorable Deputy Chief Minister, who is also the Minister in charge of the Finance. Besides that, COSAP also extends its thankfulness from the bottom of the heart to learned Chief Secretary
to the government of Arunachal Pradesh, Shri Sanam Chombeji, Commissioner to the Honorable Chief Minister, Principal Secretary Finance, and officers and officials of the Budget Department, Finance Departments for their valuable advice and inputs, which the way of the positive decisions of the state governments in favor of its employees. We have been asking this demand since last 2018, especially HRA. तो हमारा डिमांड को इतना साल से हम लोग मांग रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने देगा बोला है, चलो लेट ही सही, आखिर हमारा मांग को उन्होंने इतना जल्दी हम लोग जैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, इतना जल्दी हम लोग को तुरंत ग्रांट कर दिया है, जो कि पिछले 2018 से हम लोग ऑलमोस्ट इतना साल से मांग रहा था, तो आज उन्होंने फाइनली दे दिया है। और जैसे डीए को आप लोग जानते हैं, हमने एक्सप्लेन किया है, डीए को भी हम लोग को हाँ 1-2 महीना रुका है, वो भी हमको एरियर के साथ देंगे बोला है। तो वो चीज़ के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट इतना साल से नहीं मिल रहा था, रियली वी आर वेरी मच हैप्पी। तो इंटायर जितना हमारा 70-80,000 एम्प्लॉयड अरुणाचल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयड का तरफ से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी मैंने जैसे भी बोला, जितना भी उसके साथ हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लेड चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी और सनम चंबे जी, मैं रिपीटेडली नाम ले रहा हूँ, इसलिए रिपीटेडली नाम ले रहा हूँ कि रियली वी आर हैप्पी है। और जितना भी एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, वो सबको मैं तहे दिल से ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर एम्प्लॉयड स्टेट में तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे आप लोगों ने भी गौर किया होगा, क्योंकि आप तो समाज का एक तो यू द फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन एंड सोसाइटी, हम जानने से पहले आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपके जरिए मैं हमारा जितना भी एम्प्लॉयड अरुणाचल का एम्प्लॉयड को एक तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो मैसेज को हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी क्लियरली बोला है कि जो हम मांगता है या एम्प्लॉयड गवर्नमेंट हमारा ग्रेवेंसेस को प्रेस करता है, वो समय पर दे रहा है। हालांकि कभी कभी देर हो जाता है, फिर भी दे रहा है, पर साथ ही साथ हमारा एम्प्लॉयड का भी एक तो बेसिक जिम्मेदारी बनता है कि हम जैसे अपना राइट्स को क्लेम करता है, इसी तरह हमारा ड्यूटी बनता है, नॉट ओनली द एम्प्लॉयड्स, इनफैक्ट इट्स एप्लीकेबल टू इंटायर सिटीजन्स। When we are claiming about our rights, also we should remember our duty, because Constitution has given us rights and simultaneously condition has given us to duty also. तो इसी तरह हमारा एम्प्लॉयड गवर्नमेंट ये नहीं कि हम राइट्स को सिर्फ ही क्लेम करेगा, ये नहीं है। अगर आप राइट्स क्लेम करते हैं तो आपका बेसिक ड्यूटी जिम्मेदार को आप करना ही पड़ेगा, और कर भी रहा है। हालांकि कोई एम्प्लॉयड डिसिप्लिन नहीं है या उसका अपना ड्यूटी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाता है, अगर ऐसा कोई एम्प्लॉयड है तो मैं उन एम्प्लॉयड को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि थ्रू यू एंड थ्रू द कोसब बैनर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता अपना जिम्मेदारी को निभाए, और गवर्नमेंट जैसे हमको देता है उस तरफ से आप भी बर्डन पहल करें। अगर पब्लिक है तो हम एम्प्लॉयड है, लाइक वाइज सरकार हमको देता है तो हम अपना जो नौकरी करने से भी हमको सैलरी देता है, उस हिसाब से आपका सबसे पहले जिम्मेदारी को आप सबसे पहले उतारना है। तो आपका जितना भी एम्प्लॉयड का जितना भी दुख तकलीफ है हमको सब का तरह से हमेशा में मांग रखता है और देता भी है। इसीलिए हम जितना भी एम्प्लॉयड को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना स्पेशली कॉन्डक्ट रूल में जैसे आप प्रोविजन किए, जैसे आपको काम करना चाहिए, जैसे टर्म एंड कंडीशन है सर्विस रूल में, उस हिसाब से अपना ड्यूटी को फुलफिल करें। अगर कल को अगर नहीं करता है कोई ड्यूटी या एम्प्लॉयड हमारा बीच में अपना जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाता है, तो उससे मैं हमारा जितना भी हेड ऑफ द ऑफिस है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ऐसा एम्प्लॉयड को आइडेंटिफाई करे, एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्डक्ट रूल को एक्शन ले। क्योंकि अगर आप काम नहीं करके सिर्फ सरकार से मांगते रहने से भी ये भी गलत बात है। तो इसलिए मैं ये आप लोग के माध्यम से मैं हमारा राज्य सरकार को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हमारा एम्प्लॉयड कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपको साथ देने में, और
कुछ भी काम हो जो हमारा करना है, हमारा जिम्मेदारी हमको सौंपा जाए, हम जिम्मेदारी निभाएंगे और करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो हम बीच बीच में जो हमारा जरूरी होता है, मांग होता है, वो भी आप हमको फुलफिल करते रहेंगे, वो हम विश्वास करता है। और साथ ही साथ मैंने अपना डिमांड में ये रखा था कि आप लोग शायद डिमांड को हम लोग दिया लोग, आप लोग ने भी गौर किया होगा या देखा होगा। उसमें हम लोग रखा था कि DA, HRA, NPA और क्या बोलते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एंड देन आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस वगैरह है, और बहुत सारा अलाउंसेस है जो हमको मतलब 7 CPC में प्रोविजन में इंटाइटलमेंट है उसको मांगा था। आउट ऑफ दैट जो बेसिक नेसेसरी चीज़ को अभी हमको दिया है, और जो दिया है वो बेसिक बोल के नहीं, वो भी बहुत सारा बेसिक नेसेसरी चीज़ है, वो भी हम उम्मीद करते हैं सरकार देगा बोल के। तो इसलिए हम मेनली आप लोग का तरफ से आना है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और साथ ही साथ हमारा एम्प्लॉय को अपील करना है कि अपना जिम्मेदारी को निभाए, और जो भी असाइनमेंट देता है, ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन में रहे, और ऑन टाइम फाइल को डिले करना, डिले प्रैक्टिस करना, ये जो बोलते हैं कि रेड टेपिज्म प्रैक्टिस हो, कहीं कहीं शायद होता होगा, हम तो अभी तक नहीं देखा है, ऐसा कुछ नेचर है, तो हम उसको अपना वर्क कल्चर को चेंज करें। बेसिकली वर्क कल्चर चेंज करें, और जब आप वर्क कल्चर चेंज करेगा, आप गवर्नमेंट के लिए, आप अपना राज्य के लिए काम करेगा, तो आपका स्टेट हेल्दी होगा, डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयड अपना जिम्मेदारी को ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमारा स्टेट प्रोग्रेसिव नहीं होगा, डिले होगा। इसलिए मैं एम्प्लॉयड गवर्नमेंट को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना जो भी जिम्मेदारी रहता है अपना वर्क कल्चर को इम्प्रूव करें। और मैं ये आप लोग का माध्यम के थ्रू से मैं हमारा जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड को डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, हर एक सर्कल में या कोई हमारा कैपिटल में बैठने वाला है, को सब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ क्या थ्रो कंसल्ट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव DC या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का DC डिस्कशन करके हम लोग कौन सा एम्प्लॉय में क्या प्रॉब्लम है, क्यों डिले हो रहा है, वो चीज़ को भी हम लोग को सब टूर प्रोग्राम करके हम लोग अभी जाने के लिए भी प्रोग्राम बना रहा है। और इसलिए हम लोग आप लोग के लिए, हम एम्प्लॉय के लिए हम झुक के मांगते हैं, और हमको हिम्मत से बोलने दीजिए कि आपने भी सही काम किया है। ऐसा मौका मत दीजिए कि आपका एम्प्लॉय ये काम नहीं कर, वो काम करना मौका मत दीजिएगा बोल के मैं एम्प्लॉय को मैं अपील करता हूँ ये कोसब का तरफ से। एंड देन एक इसी का साथ एक तो बात है, ये जो 29 जून में, जैसे आप लोग सब जानते हैं, और 29 जून में ये कैबिनेट का द्वारा एक तो ऑर्डर निकलते हैं जो कि 29 ये जो 2022 का, उसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का मैटर है। तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मैटर में ये जो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का ये फर्स्ट टाइम इतना बोल्ड डिसीजन लिया, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अरुणाचल कैबिनेट में कि हर डिपार्टमेंट में ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का इशू है। उसको हमारा गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का बाद में, ऑर्डर निकालने का बाद में, कहीं कहीं डिपार्टमेंट में अभी कितना ट्रू एंड लेटर स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर रहा है, अभी उसको भी हम गौर करेंगे और देखेंगे। उसके बाद में हम अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, हम उस डिपार्टमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का HOD या हेड ऑफ द ऑफिस को मैं एज ए कोसब का प्रेसिडेंट का नाते में उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ कि जो 29 जून कैबिनेट डिसीजन है आपका ट्रू लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और अगर नहीं कर सकते तो क्या नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता है, वो भी गवर्नमेंट का साथ में आप लोग डिस्कशन कीजिएगा। और हम लोग कोसब का तरफ से भी उस मेथड में भी हम लोग कुछ ही दिन में हम लोग भी तरफ परसुएंस करेगा कि अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। उसमें क्लियर कट लिखा है कि विदिन 2 मंथ का अंदर में पूरा एक्शन रिपोर्ट देने के लिए, अभी 3-4 मंथ जैसा हो गया, अभी कितना प्रोग्रेस किया है उसको भी हम लोग डिटेल कलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर हम गवर्नमेंट का साथ में ये मेथड को भी हमें बाद में बात करेंगे। और जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी क्लियरली बोला है कि हम जब देते हैं तो रेसिप्रोकेट भी होना है। तो मैं फिर से मैं दोहराता हूँ कि ये आपके माध्यम से दोहराता हूँ कि पक्का रेसिप्रोकेट होगा, और कहीं कहीं में कुछ अगर कमियां होता है तो भी तो हमको पता चलना चाहिए। हम खुद उस डिपार्टमेंट का या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हम खुद भी बोलेंगे कि प्रॉब्लम क्या है बोल के, मैं खुद पूछेंगे, क्योंकि उनके लिए मैं रोज मांगता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि
हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो बोला है उसको हमने नोट किया है और ज़रूर करेंगे और उसका उम्मीद का ऊपर हम खरा उतरेगा बोल के हम उम्मीद करता है। और कुछ और एक तो इशू है, जैसे आप लोग जानता है हमारा लेटरल एंट्री का जो इन सर्विस के लिए जो सीओ बनने के लिए लेटरल एंट्री है, वो पिछले 4 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अभी तक एक्सपीडाइट नहीं कर पा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं काफ़ी बार हमारा ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट को बहुत बार बात कर चुका हूँ। और क्या प्रॉब्लम इतना इन ऑर्डिनेंस डिले होने का कारण, एक तरफ आप लोग सब जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में या सर्कल में आज का तारीख में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का इतना शॉर्टेज हो रहा है, सर्कल ऑफिसर नहीं है, ESC नहीं है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उसके चलते एम्प्लॉयड में हमारा डेवलपमेंट प्रोग्रेस में इतना हैम्परिंग हो रहा है, बट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी इतना डिले हो रहा है। तो इसलिए मैं पर्सनल डिपार्टमेंट को पार्टिकुलरली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके इतना कंप्लीट कर दीजिएगा। और अभी आप लोग जैसे जानते हैं हमारा ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एक तो PSCO चल रहा है और उसके चलते अभी शायद इमीडिएटली शायद नहीं हो पा सकता है। फिर भी अभी एक तो बहुत बड़ा बात है कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इतना बोल्ड डिसीजन लेके और इतना प्रॉम्प्ट और इतना डायनेमिज्म रोल प्ले किया कि ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे ही रिपोर्ट आया है उसको इतना तुरंत एक्शन लिया है। अरेस्ट आप लोग सब देख रहे हैं, इतना अरेस्ट हो रहा है और उसको CBI को केस को हैंड ओवर किया है। इवन ये चेयरमैन के लिए और मेंबर के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। और मैं पर्सनल डिपार्टमेंट को मैं ये अपील करता हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज एंड व्हेन दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर chairman of the Arunachal Pradesh Public Service Commission and then this member appointment is process completed, immediately next step उसी नया टीम का साथ में ये जो लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करा दो बोल के मेरा ये रिक्वेस्ट एंड अपील है। और कुछ हमारा एम्प्लॉयड का इशू है, जैसे हम लोग का NPS है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसमें हमारा सेक्रेटरी जनरल इस मैटर में नेशनल लेवल तक टच ऑन करके और जितना भी कॉमन सब्सक्राइबर का साथ में हो कॉन्स्टेंट टच में है। आई लाइक टू रिक्वेस्ट हिम टू ब्रीफ अप दिस NPS इशू फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयड। सारा अरुणाचल का स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तरफ से हम बहुत खुश है, स्पेशली हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड हिज टीम अरुणाचल। तो हमारा जो भी डिमांड्स है, मेन जो डिमांड्स है उसको फुलफिल किया है, उसने अनाउंस कर दिया है। डियरनेस एलोवेंस, डियरनेस रिलीफ, हाउस रेंट एलोवेंस एंड नॉन प्रैक्टिसिंग एलोवेंस फॉर डॉक्टर्स। तो प्रेसिडेंट साहब ने इसको पूरा कवर किया है। तो इसी का साथ में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, ये स्टेट एक्सचेकर का ऊपर में हम लोग को जो भी बेनिफिट देता है एम्प्लॉयज़ को या पब्लिक को, स्टेट एक्सचेकर का ऊपर में एक बर्डन पड़ जाता है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। लेकिन हम स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंसियरली अपना ड्यूटी करेगा, स्टेट का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए सिंसियरली ड्यूटी करेगा। हमारा पब्लिक का पास में जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो भी बेनिफिट है उसको पहुंचेगा, तो स्टेट आगे बढ़ेगा। स्टेट आगे बढ़ेगा तो स्टेट का इनकम बढ़ेगा, तो इस हिसाब से अपना स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो वो हमारा ड्यूटी का वजह से, हमारा सिंसियरिटी की वजह से स्टेट का एक्सचेकर भी इम्प्रूव होगा और इसको गवर्नमेंट को आसान हो जाएगा। तो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने सारा कुछ कवर किया, मैं NPS का नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में आप लोग को थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। 2003 में एक पार्लियामेंट एक्ट पास होता है, नेशनल कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। इसको बाद में बनाया गया नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये एक्चुअली जो डिफाइंड पेंशन सिस्टम होता है, रिटायरमेंट का बाद में जो एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट हो जाता है उसका बाद में गवर्नमेंट जो उसको पेंशन देना पड़ता है, उससे गवर्नमेंट बचने के लिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट का एक्सचेकर में बहुत एक बोझ पड़ जाता है, तो इसलिए अपना से एक कंट्रीब्यूशन करके एम्प्लॉयज़ जो है जब तो वो सर्विस कर रहा है, अपना से कंट्रीब्यूशन करके उसको प्राडा का जो
सर्टिफाइड एक कंपनी में उसको डिपॉजिट करे, कंट्रीब्यूट करेगा, उससे जो मुनाफा कमाएगा वो टोटल करके गवर्नमेंट जो है ऐसा है एनपीएस में बेसिक पे का ऊपर में अपना जो एम्प्लॉय है वो 10% कंट्रीब्यूट करेगा और 10% एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट करेगा उस समय। अभी लेकिन डिसीजन ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट का तरफ से 14% कंट्रीब्यूट करेगा, तब जाके 24% जो बेसिक पे है आज का दिन में वो एक कंपनी में डिपॉजिट होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें जो जैसे ग्रोथ होगा वो रिटायरमेंट का बाद में आपको 60% जो है आपको कैश दे देगा और 40% को आप एक एन्युटी लेना पड़ेगा, उससे जो इंटरेस्ट आता है आपको मंथली पेंशन मिलेगा। ये नियम बनाया था, लेकिन देखा गया है तो स्पेशली हमारा स्टेट, हमारा नॉर्थ ईस्ट को देखा गया तो यहाँ में एक बार पेंशन होने का बाद में आदमी डायरेक्ट अनएम्प्लॉय हो जाता है। तो और हमारा लोकल जो है ट्राइबल आदमी जो है अपना जवान में कमाई करते समय और या नौकरी करते समय कैसे सेविंग करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसका आइडिया नहीं है। तो एक बार रिटायरमेंट होने का बाद में पेंशन का ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है। तो इसलिए ये मांग 1-2 साल से शुरू हुआ और सारा इंडिया में ये चल रहा है और राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया ये एनपीएस को स्क्रैप करेगा और ओपीएस जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसको रोल बैक करेगा। तो यही हमारा भी डिमांड है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डिमांड है, जो एनपीएस सब्सिडी का डिमांड है। तो इसी के चलते हमको भी एनपीएस स्क्रैप करके ओपीएस में वापस लाया जाए। तो नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा स्टेट है असम, लास्ट टाइम आप लोग देखा होगा, वहाँ में भी एनपीएस का एक रैली हुआ था बहुत जोरदार से। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का जितना एम्प्लॉयज़ है तो उनसे बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जब एनपीएस स्क्रैप होगा और ओपीएस लाएगा, हम एक साथ में लाना है। और हमारा डिमांड है, इंडिया एक काउंट्री, एक नेशन है, तो यहाँ में राजस्थान में आपको राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रिटायरमेंट का बाद में पेंशन मिलेगा, अरुणाचल का पेंशन नहीं मिलेगा, आपका छत्तीसगढ़ का पेंशन मिलेगा, मध्य प्रदेश का नहीं मिलेगा। ये तो नहीं हो सकता। इसलिए हमारा डिमांड है 1 नेशन 1 पेंशन। अगर ओपीएस को एनपीएस को हटाना है, सारा इंडिया से हटाना है, सारा स्टेट से हटाना है, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डिमांड है। भी अपना बात रखेंगे कि शी इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इंटायर वुमेन एम्प्लॉयज वुमेन ऑफ द स्टेट। मैडम, very good afternoon, media fraternity. Thanks to all very much for covering this briefing, press briefing. My president sir and secretary sir have already expressed their gratitude and thanksgiving, but still I'm here to express my gratitude to the our honorable chief minister and his government for giving us such a great gift, advanced New Year gift, especially the DA. I on behalf of all the employees of the state would like to thank him. The DA, which is really a basic need one, it's really going to help us in our daily managing our household chores and everything that really is basic. So once again, I would like to thank our young and dynamic Khanduji sir and all those who have taken initiative in giving us this beautiful gift. रेगुलर नहीं होते उनका तो पेंशन बहुत कम ही आता है या फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है उसका भी बहुत कम आता है, तो वो फिर डिलेग होता है तो और कमती हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग कुछ आवाज़ नहीं करें। एक्चुअली उसमें ऐसा है, ये कोसप जो है, कोसप का कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से कोसप सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए है। हम लोग रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए बात करता है, लेकिन हमारा जो रिटायर एम्प्लॉयज़ हो गया, जो पेंशन मिलता है, उसका लिए डीआर जो है डियरनेस रिलीफ होता है। इसलिए हम लोग फाइल मूव करने के लिए भी उसको रिटायर एम्प्लॉयज़ लोग के लिए कोई दौड़ धूप करने वाला नहीं है, इसलिए इन लोग को साथ में हम लोग वो करता है। तो अभी जो आप बोल रहा है पेंशन उसका बहुत कम आता है, तो ये ऐसा है एनपीएस को लेके ही है, एनपीएस का वजह से हो रहा है,
क्योंकि आप 25 ईयर्स कॉन्टीजेंसी में रहेगा, उसका बाद में आप बार्स ऑफ रिटायरमेंट में रेगुलर हो जाएगा, 5 ईयर्स रेगुलर नौकरी करेगा, उसमें कंट्रीब्यूशन आपका 5,000 आप कंट्रीब्यूट करेगा, गवर्नमेंट 5,000 करेगा, तो 10,000 मंथली कंट्रीब्यूशन करके 5 ईयर्स में कितना होता है 60 मंथ्स, आपका 60 मंथ्स इंटू 10,000, तो कितना डिपॉजिट होगा, तो 2-3 लाख ही डिपॉजिट होगा आपका। ऐसा है 40% जो आप एन्युटी खरीदता है उसका जो मंथली इंटरेस्ट आता है उसको आपको मंथली पेंशन में देता है। तो आपका अगर 2 लाख का एन्युटी खरीदता है, 3 लाख का एन्युटी खरीदता है, उसका तो मंथली इंटरेस्ट तो 600-500 ही आएगा, तो उससे तो आपका घर नहीं चल सकता है। लेकिन आप ओल्ड एज पेंशन में अगर होगा तो आप जिस दिन रिटायर हो रहा होगा उसका बेसिक अगर 50,000 है तो 25,000 प्लस डीआर मिलेगा, जो डियरनेस रिलीफ बोलता है ना, डीआर और डीए जो है सेम परसेंटेज में आता है। तो जैसे कि अभी 38% हो गया, वो 25,000 का साथ में 38% जुड़ के वो आपका रिलीफ में ये पेंशन में आएगा, कम से कम 30,000 तो आ रहा है। लेकिन इस तरफ क्या है कि आपको 1,1200 आ रहा है, 1,1200 तो फैमिली नहीं पा सकता, इसलिए हमारा डिमांड है एनपीएस जो है एकदम किसी भी रूप में अच्छा नहीं है, स्पेशली आपका जब नौकरी में हो तब भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एनपीएस डिपॉजिट को आप विड्रॉ भी नहीं कर सकता है। जो ओपीएस में था वो जीपीएफ का जो डिपॉजिट है उसको समय समय में आप जरूरी होने से विड्रॉ कर सकता है। ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट ये दोनों तरफ से एकदम इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं है, इसलिए इंडिया तो वेलफेयर स्टेट है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी वेलफेयर स्टेट है, तो इसलिए हम लोग यही डिमांड करता है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ओपीएससी वापस लाए। थैंक यू। मेरा सवाल आपका प्रेसिडेंट से रहेगा, आपने तो यहाँ में आपका एम्प्लॉय फ्रेंड्स को मतलब साथ सिंसियरली काम करने के लिए अपील किया है, लेकिन आजकल ऐसे मतलब चल रहा है कि एम्प्लॉयज लोग चोर का नाम से जाना जा रहा है, मतलब सोशल मीडिया में जब भी खोलो तो आप लोग का कोसप का ऐसे मतलब मैकेनिज्म है क्या, जो मतलब आप लोग कोसप में ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या, जो एम्प्लॉय कोसप को बदनाम कर रहा है, एम्प्लॉय फ्रेंड्स को बदनाम कर रहा है, उसका अगेंस्ट में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन या कुछ ये के लिए? It's indeed it's very important questions. You see, what you said that some employees are doing this and that, and taking bad impressions to the employees. That is very unfortunate, and really, I too witnessing that some such officers is such incidents is going on. For that, what I want to say is that in COSAP constitutions, we have not framed such any conditions that if any employees or officers and officials involved that things, then we will take actions. There is no any such rules and regulation within the COSAP bylaws. However, whatever we are operating, term and condition we are operating, we are doing and implementing at par with the central CCS rules. That is CCS rules. So, conduct rule is there. Whosoever will be the employed, maybe the group A officer, B officer, or multitasking staff. For them, the rule is same. Any employees involving that way, for them, conduct rule is clearly spelled out, and it's totally depend on the head of the office and head of the departments to take actions as per the CCS rule and CCS conduct rule. That is the provision. How many unfilled vacant posts is lying? Sorry? How many unfilled posts is yet to be requested under EG, your entry grade level? Vacancy post. Yeah, he is asking basically how many posts are vacant for one of your demand is. Oh, entry grade. Oh, Yes. okay. 15 post. दिस अभी जो हम लोग लेटरल एंट्री को बात कर रहे हो बोला, हाँ. How many? 15 post. Actually, I was confused. Entry grade means how many vacancies, so I was little bit confused. 50 posts remaining. 15. 15. 1-5. So what we are basically referring this particular point, that is immediate completion of the ongoing recruitment process of the lateral entry that post. In this particular case, I think there is I'm sure 15 post vacancies are there, and for that 15 vacancies, recruitment is going to be taken. Regarding this matter, आपने कहा कि ये जो issue है 2018
4 years. Yes, yes. और आप लोगों ने इसका ऊपर इंक्वायरी किया, लाइक ऑन योर लेवल डिपार्टमेंट को पूछा ऐसा फॉर द डिले रीजन पूछा, डिले का कारण मतलब उसका डिले का रीजन क्या है, तो व्हाट रेस्पॉन्स यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न? नहीं, ऐसा है, इन दिस रिगार्ड्स हमने कंसर्न डिपार्टमेंट से बातचीत किया है और बातचीत में मीन्स एक दो बार मिलकर बात किया। उनका कहना है कि जो लिटिगेशंस इशूज़ है उसे पहले वाला का कुछ केसेस है, सो उनका डिपार्टमेंटल लिटिगेशन केस कितना है, क्या है, कैसे है, हम कोसप होने से भी वहाँ में जाके हम लोग पूछताछ नहीं कर सकता एक तो कि वो लिटिगेशन केस होने का कारण से ये डिले हो रहा है बोले। सो आई एम अपीलिंग एंड रिक्वेस्टिंग द कंसर्न अथॉरिटी to whatsoever may be the reason, but to delay of the 4 years is abnormal. So I am appealing to complete the process immediately कि जो भी है लिटिगेशन है, जो भी आपका डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है आप सेटल कर लीजिए, मेरा वही कहना है। 4 years is a very long time. Yes, 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 that's what I am saying. So आप लोगों ने कितना माने अप्रोच तो किया, रिप्रेजेंटेशन दिया? Yeah, so far we have submitted 2 times representations. More than that. So during my time, prior to that also we had submitted many representations. When I became president, by my time we had submitted 2 times representations. आप लोग का ये लेटर एंट्री में कितना वो कौन सा हायरिंग तक का ऑफिसर्स आता है? यू आर मेंशनिंग हियर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन नॉन कैरिड आउट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो कौन सा लेवल तक का ऑफिसर? ये ऐसा है, लेटरल एंट्री में ये APCS मतलब अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस बोलता है ना, COs लोग का, COs का जितना स्टार्टिंग में जितना पोस्ट क्रिएट होता है उसका 20% रखा गया है। जो ऑलरेडी नौकरी में होगा उसका सर्टेन ड्यूरेशन के क्वालिफाइंग सर्विस होगा और उसका क्वालिफिकेशन भी होगा, उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट का ऑलरेडी सर्विंग एम्प्लॉय लोग उसमें इंटरव्यू में कंपटीशन कर सकता है। 2% जितना पोस्ट क्रिएट होगा उसका 2% रखता है, 80% को डायरेक्ट APSC का थ्रू रिक्रूटमेंट करता है। तो उस हिसाब से ये इसका जैसे कि ये एज पर नोटिफिकेशन इसका सीनियोरिटी होता है, तो जैसे कि यहाँ में पर्सनल डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन हो गया 2018 को, तो और उसका बाद में 2019 में ये APSC में नोटिफिकेशन हो गया, तो उस हिसाब से वो पोस्ट जैसे क्रिएशन होता है उस हिसाब से सीनियोरिटी को भी मिलाता है। ये कोई लेटरल एंट्री में जाके DC तक डिप्टी कमिश्नर तक होकर रिटायर हो चुका है। तो अभी क्या है कि 2018 में 15 पोस्ट वैकेंट था, तो बीच में पोस्ट क्रिएशन बहुत हुआ, 15 का बाद बीच में 2021 तक COs का अपॉइंटमेंट बहुत सारा हुआ, उसका जो 20% है वो भी बैकलॉग में आ गया। लेकिन अभी इंटरव्यू होगा तो 2018 का नोटिफिकेशन का हिसाब से 15 पोस्ट का इंटरव्यू होगा, बाकी सब बैकलॉग में रहेगा। तो जुलाई और अगस्त 2015 में आउट ऑफ 19 पोस्ट 15 तो डिस्पोज हुआ था, तो बचा उसमें कितना था? नहीं, उसमें एग्जैक्टली वो 2014 का नोटिफिकेशन था, 19 पोस्ट था। उसमें क्या हुआ है कि उस समय क्या है APSC को नहीं दिया था, इंटरव्यू कंडक्ट पर्सनल डिपार्टमेंट करता था। उसमें 19 पोस्ट के लिए 19 कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में इन लोग को लगा कि इन लोग एक नियम बना दिया, जो अंडर परफॉर्म था उसको नहीं देना है, तो 15 को अपॉइंटमेंट दे दिया, 4 कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो वो 4 कैंडिडेट ने क्या किया, सिंगल बेंच में चला गया, जीत गया। फिर गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया डबल बेंच में भी वो कैंडिडेट लोग जीत गया। तो 2020 का नवंबर में जजमेंट निकला डबल बेंच का, उसको अपॉइंटमेंट दे दिया, वो 4 को अपॉइंटमेंट दे दिया। 16 नवंबर 2021 को इन लोग को अपॉइंटमेंट, आज से 1 साल पहले इन लोग को अपॉइंटमेंट दे दिया। तो ये भी एक तो वजह है ये 2018 का नोटिफिकेशन। उसके बाद में कोरोना भी 1-1.5 साल डिस्टर्ब किया है, उसको भी हम मानते हैं, लेकिन 4 years तो ये तो मोर देन सफिशिएंट टू कंडक्ट एन इंटरव्यू। उसमें रिटेन भी नहीं होगा, उसमें एज पर कॉन्फिडेंस जो अपर होता है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग का, उसको वेरीफाई करके उस हिसाब से एक सिलेक्शन करना पड़ता है। एप्लीकेशन जितना आया है उसको उससे सेलेक्ट करके उसको
एक इंटरव्यू लेता है, उसमें रिटन इंटरव्यू नहीं है। एक इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए एक 4 इयर्स में चलो आप लिटिगेशन और कोरोना में 2 साल भी चलते हैं, 2 साल लगना तो ये तो एबनॉर्मल ये हो गया ना, डिले हो गया ना। थैंक यू। ओके सर, ये सर आपने पूछा था इफ एनी ऑफिसर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज if found unfair means doing unfair means. Now what is the role of the COSAP? आपका question, that was the question to the president. So in that matter, I would like, before in the press briefing, we have already told that president and secretary have already clearly told that if any officers or any official government employees found doing any unfair means or is a corrupted one, we COSAP members, we are being even we are for the employees, but we are not going to come out in their support. That is our role. लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं क्लियरली बोला था। हाँ बोला था।